Hello everyone, I welcome you all on this YouTube channel UPSC Logi, and this is me Rahul, and today we are going to cover the Hindu analysis for your public administration optional dated 17th of December 2020. And let's get started. And before starting and before beginning this specific lesson, let me tell you that public administration current affairs magazine is available, and you can basically download the magazine from the month of July itself, and the link for the same is given in the description box. Apart from that, you can also opt for the subscription from the month of October itself. Okay, so you can download the magazine, you can opt for subscription. The procedure and Google form and the link for the same are given in the description box below. Okay, so let's get started with the Hindu analysis dated 17th of December, where we are going to cover this Hindu analysis for your PubEd optional. So on the first page you will get one news article where Supreme Court is basically going to form the committee with respect to the issue of farmers protest, and in that committee there will be the members from the government of India as well as from the other stakeholders like farmer leaders will be there, and there is a kind of, you can say, participation, and there is a kind of system for Francis Likert that you will get in the entire process. Okay, this is the news article. Now the thing is, you have to link this specific news article with the judicial activism, judicial overreach, judicial papism, and judicial barbarianism. These are the keywords that you have to use in your answers when it comes to the things like judiciary or something like that. Okay, so here this article is basically talking about judicial activism. Judicial activism is something that you must have aware of. Judicial activism, you must be knowing about the three branch of state, that is legislature, executive, and judiciary. There are, you can say, there is a kind of separation of power between executive and judiciary under Article 50 of the Indian Constitution. Legislature, executive, there are checks and balances, but there is a kind of relationship, the organic relationship is there between legislature and executive, because we have this parliamentary form of government. All these basic things you must be aware of. But here what you have to understand with respect to your PubEd optional, this judicial activism, yesterday also our discussion was based on the problems and the solution insofar as the judiciary is concerned, and I told you this thing that that there are many things which can be solved by the executive or legislature, but because of their you can say because of the fact that they are not interested, because, or for that matter, there is another reason which is पॉपुलिज्म, कि लोगों से वोट मांगने जाना पड़ेगा अगर अभी कुछ ज़्यादा कर देते हैं तो उन्हें डर लगता है. ऑल दोज थिंग्स led to this issue, this kind of situation where executive pass on the ball of decision making towards the judiciary, and this is what we are witnessing in this issue as well, because judiciary is not accountable to the people directly. Okay, so that is the reason why we have this kind of thing, and again this is one of the issue for judiciary. Okay, छोटे लेवल पे तो लगता है कि चलो ठीक है, ब्लैक मनी में सुप्रीम कोर्ट ने SIT बना दी, ठीक है, वो प्रोटेस्ट चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एंटर हो गया, और फॉर दैट मैटर 500 मीटर 200 मीटर वो हाईवे के बगल में वो दारू वारू नहीं मिलनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को अंदर आना पड़ा. दीज आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन. और अब जब सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में इंटरफेयर करता है, इट मीन्स वो जो जुडिशियल पेंडिंग केसेस पेंडिंग हैं और वो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, वो बहुत ओवर बर्डन है. इट इज़ द एक्स्ट्रा बर्डन which is not required. So you can mention all these things. Okay, these are the things. Apart from that, from your public administration perspective, you can bring the sociology optional dimension. एक थोड़ा सा dimension you can bring. There are two school of jurisprudence. Jurisprudence के अंदर दो school of thought होते हैं. There are two school of thoughts insofar as the jurisprudence is concerned. There are two school of jurisprudence. One is
positivist school of jurisprudence and the another is this sociological school of jurisprudence. Okay, पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कि वहाँ पे पब्लिक लॉ इज नथिंग बट द लेजिस्लेटिव लॉ. मीन्स व्हेन वी से लॉ इट मीन्स लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द legislature. This is positivist school. Okay, here we do not have the judicial law or judicial interference or judicial activism or judicial overreach for that matter. So ultimately this is the first kind of school. So just try to remember, let me bring this thing in the form of this. So there are two school. First thing is the I told you earlier, the first school of thought is positivist school. Here law is equal to legislative law only. Okay, law is equal to legislative law only, and that's how judicial restraint is being propounded by this school. The second school is this sociological school of jurisprudence, and here law is equal to two things. One is legislative law and another is the law or the you can say judgments of the Supreme Court is the second dimension of this law, and that's how this school of jurisprudence would basically it basically implies judicial activism, judicial overreach, judicial supremacy and something like that. I hope you are getting. तो एक तो लॉ सीधा बनेगा पार्लियामेंट से. पहला स्कूल ओनली इट इज टॉकिंग अबाउट कि लॉ का मतलब पार्लियामेंट्री लॉ और लेजिस्लेटिव लॉज, बट दूसरा स्कूल कह रहा है कि लॉ का मतलब ये भी होता है और वो भी होता है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल we have the prevention of sexual harassment at this sexual harassment at workplace. पोश एक्ट इज देयर. ओके, लेकिन उसका जो ऑरिजिन है दैट ऑरिजिन इज देयर इन द विशाखा गाइडलाइन. पहले विशाखा गाइडलाइंस आई थी, उन गाइडलाइंस में जो भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने सेम थिंग वाज कॉपी पेस्टेड इन द दिस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले एक्ट के अंदर. ठीक है, सेम उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट किया गया था. विशाखा गाइडलाइन पहले आई थी. सो that thing is there. Similarly triple talaq. So triple talaq judgment was by Supreme Court itself. Later on उन चीज़ों को दोबारा से एक एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने भी पास कर दिया. पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ उस पर जजमेंट दी थी. ओके, सो दिस इज नथिंग बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. सिमिलरली विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम और दीज आर द थिंग्स जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना लॉ वगैरह बना देता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन where it is explicitly given कि they have the power and in so far as the complete justice is concerned they can do anything. They can go into the legislative wing, executive wing, they can give they can give any order or something like that. Okay, for example an Ayodhya judgment, Supreme Court used that article 142 of the Indian constitution itself. Okay, so these are the things, these are the dimensions that you can talk about, and in this way you can talk about the जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है, सिंपल जुडिशियल एक्टिविज्म GS2 का तो यू नो अबाउट इट, बट फॉर पबेड यू कैन ब्रिंग दीज sociological and this positivist school of jurisprudence in the answer writing. Apart from that, how you can link this thing with your public administration? One thing you can easily link it with the public administration paper 2 under the heading called union government and administration. There is a topic called judiciary and all. Okay, and in that you can imagine or you can basically predict that UPSC is going to ask such type of question. The second point where you can link this article is the chapter of this chapter 1 of your public administration paper 1, that is the introduction of public administration. This is the identity of public administration. Means public administration's meaning have different dimensions, like sociological dimension is there, like sociology means the Rix is there, Weber is there. This is the societal dimension of public administration. Similarly, historical dimension of public administration means PubEd has a link with history as well. So in history you can talk about the trend of state or the background of the theories like SMTs, like Weber's bureaucratic theory, Fayol's administrative theory, or let's say this and another thing, this
Taylor's scientific management theory. So administrative management, bureaucratic management and scientific management, these are the three organizational theory. और सबके पीछे एक हिस्ट्री है, हर कहानी की एक कहानी होती है, या हर इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है, हर टॉपर की एक हिस्ट्री होती है, हर इंसान की एक हिस्ट्री होती है, ऐसे ही हर थियोरी की एक हिस्ट्री है. दैट इज़ नथिंग बट द हिस्टोरिकल एनालिसिस और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अलावा इकोनॉमिक आइडेंटिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो देयर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट एडम स्मिथ वगैरह एंड वगैरह. एडम स्मिथ, J.M. कीन्स, देयर थियरी इम्पैक्टेड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उस मैक्रो इकोनॉमिक्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैक्ट किया था. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रीड हेनरी फ्योल, अगर आप हेनरी फ्योल को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यू विल फाइंड आउट दिस थिंग दैट हेनरी फ्योल वाज टॉकिंग अबाउट हिज थियरी ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क. जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट थिंग वाज बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ एडम स्मिथ का जो स्पेशलाइजेशन और कार्टेशियन फिलोसफी थी. सो you can just talk about the you can say this economics dimension, also the financial administration, public sector undertaking, financial management, budget, all these things have the economic dimension. Okay, I hope you are getting this thing as well. So these are the things. Similarly, there is a legal dimension or the dimension of law, and in that dimension you can link this judicial activism, judicial school, public law वगैरह and वगैरह. Criminal justice system is the another example where police and judiciary, they are basically working in the entire closed system called judicial, this criminal justice system. So this is the legal identity of public administration, or you can say public administration and public law. This is the another identity. Apart from that, philosophical identity is also there, because every administrative application has the philosophy or theory in the form of administrative theories. So you can mention them if you get such type of question. Apart from that, psychological dimension of public administration is also there. So this is one topic, means identity of public administration. It is given in the advanced book, but I hope you are getting this thing very easily. ठीक है, बुक्स में तो बहुत पढ़ोगे तभी ये सब समझ में आएगा. So I give you the entire, you can say, crux of the things, and where you can link पबेड का हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, जोग्राफी छोड़ के हमने सबसे रिलेशन हमें पढ़ना है. हिस्ट्री से क्या है, इकोनॉमिक्स से क्या है, पॉलिटिकल साइंस से क्या है, वो तो सबको पता होता है बिकॉज इवोल्यूशन में वो चीज़ क्लियर है. मैनेजमेंट से क्या है, फिलॉसफी से क्या है, पब्लिक लॉ से या लीगल या लॉ से, लॉ जो होता है ना लॉयर वाला, उससे क्या रिलेशन है. सो दैट डायमेंशन आई टोल्ड यू. सो वो लॉ वाली जो डायमेंशन है वहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट दीज स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक दिस स्पेसिफिक वन आर्टिकल. छोटा सा एक सुप्रीम कोर्ट वाला आर्टिकल यू कैन लिंक टू दिस मच एक्सटेंट. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. द सेकेंड न्यूज आर्टिकल दैट यू हैव टू रीड is given in the editorial page. Lead article जो वहाँ पे दिया गया है, that lead article is talking about, here we are talking about judicial activism, and that article is talking about judicial this abnegation, okay, or judicial evasion, or judicial self deference. Okay, that judiciary is, you can say, they are shying away from taking the responsibility of getting the justification of executive action. ठीक है. So if you read that article, वहाँ पे एक कोट दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का. उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू से कि, मतलब जी लगा लो दोनों में, सरदार पटेल जी ने नेहरू जी से कहा था दैट वी आर faced up by this constitution, and our every executive action have to backed by the this legal sanction and judicial justification. Executive action should be backed by the legal sanction and judicial justification. These are the keywords that you can quote in your answer. कि accountability का जो आंसर होता है वहाँ पे you can quote this thing in the answer in intro, body, conclusion, जहाँ पे फिट हो जाए. इस लाइन को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस लाइन को जवाहरलाल नेहरू को जो बोला था उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर को, तो वो यू कैन कोट इन योर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर नंबर 1. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम दैट द आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि जुडिशरी जो है वो थोड़ा कहीं आर्टिकल ऐसे होते हैं. देखो जुडिशरी में क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक तो ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर दिस सुप्रीम कोर्ट ऑन द फार्म प्रोटेस्ट एंड ऑल, फार्मर्स प्रोटेस्ट.
अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी बात आ जाती है जुडिशियल बारबेरियनिज्म की। ओके, दिस जुडिशियल बारबेरियनिज्म बेसिकली मीन्स कि जुडिशरी जो है वो बहुत मतलब बहुत गलत तरीके से डिसीजन ले रही है। यू कैन क्रिटिसाइज जुडिशरी इन दैट डायमेंशन, तो वो एक जुडिशरी का डायमेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया ट्रेंड आया है जुडिशियल इवेजन बाई एबनिगेशन। ओके, सो जुडिशियल इवेजन क्या होता है? पहले जुडिशियल इवेजन बाई एबनिगेशन समझो। जुडिशियल इवेजन बाई एबनिगेशन इट बेसिकली मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना कर देता है कि नॉट एक में होता है नॉट नाउ, और एक में होता है कि नॉट अस, एक में होता है कि हम हैं ही नहीं, हमारा ये काम नहीं है, और एक में होता है एक जुडिशियल इवेजन होता है, एक एबनिगेशन होता है। दोनों में यही अंतर है। एक कहता है कि हमारा ये काम नहीं है और दूसरा कहता है हमारा काम तो है लेकिन हम बाद में करेंगे। मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेज दी है तो वो कह देते हैं कि हम बाद में करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का फॉर एग्जांपल, जस्ट एकेडमिक सेंस में लेना, बाकी कोई भावों को जज्बाती या नहीं होगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसा पढ़ा रहे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में लोग गए कि जो डिटेंशन है वो इस तरीके से रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स वगैरह हैं, सो दैट थिंग वॉज देयर, और सुप्रीम कोर्ट कह देता था कि एट नॉट नाउ मीन्स इट्स लाइक फ्रेंड रिक्वेस्ट जो फेसबुक पे भेजते हो और सामने वाला कर देता है एक्सेप्ट करने की बजाय नॉट नाउ, मीन्स वो कर सकता है लेकिन वो बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के दायरे की चीज़ तो है, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे सकता है कि ये गलत है, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम बाद में देखेंगे, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दैट थिंग इज देयर। सो जुडिशियल एबनिगेशन, जुडिशियल इवेजन, दिस इज द थर्ड डायमेंशन ओके विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी। सो आर्टिकल है, अच्छा सा आर्टिकल है, उसको बस एक बार पढ़ लेना। क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, और ऐसे आर्टिकल का जब कंक्लूजन जो होता है वो कंक्लूजन आपके आंसर राइटिंग का कंक्लूजन ना बने, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज दोज कंक्लूजन्स आर वेरी यू कैन से दिस against government, and those things should not be there in your answers conclusion. okay, so थोड़ा सा पॉजिटिव वे में चीज़ों को, जो कमियां हैं उन कमियों को यू कैन राइट इन अ पॉजिटिव मैनर कि ऐसा हमको नहीं करना है और इसके अपोजिट में कुछ अच्छा लिखना है। ओके, सो दिस इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट द अनदर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट RTI एंड दिस सम डेज बैक आई हैव कवर्ड दैट आर्टिकल वेयर कि एड्रेस जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, तो प्राइवेसी पर आर्टिकल है, यू कैन रीड दैट आर्टिकल। कंट्रोवर्शियल और उस तरीके की चीज़ है, बट यस यू कैन कोट इट समवेयर और समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन रीड दैट आर्टिकल। मीन्स लीड आर्टिकल में प्राइवेसी, ये आर्टिकल दोनों लीड आर्टिकल यू कैन रीड टुडे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर आर्टिकल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया की रैंक जो है 131 आई है। ओके, सो इंडिया गॉट दिस 131 रैंक। 2 रैंक्स जो हैं वो कम हुई हैं लास्ट ईयर से, तो अभी इसमें कोरोना का जो इम्पैक्ट है 2020 में जो भी था वो चीज़ यहाँ पे अभी इसमें काउंट नहीं हुई है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यू कैन लिंक इट विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 डेवलपमेंट एंड डायनेमिक्स। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड दैट आर रेलिवेंट फॉर योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 3 articles are there. Apart from that, for Indian Express, in Indian Express of newspaper of Indian Express dated 17th of December, there are 2 articles that you can refer to over there. So I am just giving you the crux, and they are not very big article, just listen to me very carefully. Just try to understand that in Kerala election was going on, and the local election were going on, and there is one political party which was funded by the this corporate sector. तो एक corporate sector जो होता है ना, corporate social responsibility, तो that party was basically social function वगैरह करती थी, and that party was funded by द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर, एक ग्रुप था कीटेक्स ग्रुप, ऐसा कुछ नाम है उसका, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन द गूगल, यू कैन सर्च इट एंड यू विल गेट कीटेक्स या ऐसा कुछ ग्रुप का नाम था, और दैट ग्रुप वॉज बेसिकली फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ सीट्स जीत गई है। सो नाउ दिस इज द ट्रेंड दैट यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स वगैरह, दिस इज नोन एज द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हुआ था, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो एक राइटर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको कोट भी कर सकते हैं। इफ़ यू रीड अरिबम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पेपर 2 की, यू विल गेट वन राइटर ओवर देयर,
उस राइटर ने एक बहुत अच्छे से उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि पहले अर्लियर क्या होता था, जब आज़ादी के बाद का टाइम जो था तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो था, लेकिन वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इस तरीके का था दैट पीपल who are criminals they used to fund the political parties or the political leaders। तो वो क्या करते थे, डायरेक्टली चुनाव नहीं लड़ते थे क्रिमिनल्स किसी को सपोर्ट करते थे और वो जिसे सपोर्ट करते थे वो जीतते थे, ठीक है। सो दैट डायमेंशन वॉज देयर, मीन्स लाइक मिर्ज़ापुर 1। तो मिर्ज़ापुर 1 में जो वो कालीन भैया होते थे वो नेता नहीं बने होते थे, समझ रहे हो, वो सिर्फ फंड वगैरह करते थे, जो भी लोग हैं वहाँ पे, जो भी लीडर वगैरह, जो भी जेपी यादव वगैरह जो लोग थे वहाँ पे, तो वो डायरेक्टली इलेक्शन में नहीं आए थे। तो वो आज़ादी के बाद का भारत वैसा भारत था। पहला तो भारत शुरू का तो बहुत सही था, 10 साल तक का, मतलब जब नेहरू वाला एरा चला था, क्योंकि वहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी तो कोई जीतने का टेंशन नहीं था, तो इतना ज़्यादा करप्शन भी नहीं था, और कुछ ऐसा न्यूट्रलिटी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि एक ही पार्टी है। न्यूट्रल हो गए तो भी न्यूट्रल हो, अगर किसी एक आइडियोलॉजी से आप ध्यान दोगे तो आइडियोलॉजी वो तो एक ही पार्टी की थी। सो वहाँ पे कोई इतना इशू नहीं था, वहाँ पे बहुत हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग और वो सब होती थी। लेकिन आफ्टर द यू कैन से नेहरूवियन एरा, जब 1967 के बाद और पार्टीज आई तो वो सी चीज़ें बदली, फिर क्रिमिनलाइजेशन आया, लेकिन दैट क्रिमिनलाइजेशन वॉज लाइक मिर्ज़ापुर 1, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ डायरेक्ट इलेक्शन, बाहुबली लोग डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ते थे, बस जेपी यादव और ऐसे लोगों के थ्रू फंडिंग करते थे, ओके। तो जो मिर्ज़ापुर देखे हो वो समझ जाओगे, बाकी लोग बस ये समझो कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ते थे, दे यूज टू फंड इनडायरेक्टली, ओके। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि वो डायरेक्ट इलेक्शन में आने लगे कि यार हम बीच में ये क्यों रख रहे हैं, बीच की ये जो मतलब बीच के लोग होते हैं इनको हटाना चाहिए, एंड दे डायरेक्टली स्टार्टेड टू फाइट इन इलेक्शन, और वो जीतने भी लगे। अगर इलेक्शन लड़ोगे तो जीतोगे भी। सो दैट डायमेंशन, तो मिर्ज़ापुर 2 यू कैन ब्रिंग ओवर हेयर कि वो बाद में खुद ही मंत्री वगैरह बनने लगे, है ना। मिर्ज़ापुर 2 में कालीन भैया मंत्री बन गए थे। सो दैट टाइप ऑफ डायमेंशन वॉज देयर इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। वैसा ही ट्रेंड वी आर बेसिकली विटनेसिंग इन दिस कॉर्पोरेटाइजेशन। पहले कॉर्पोरेट फंडिंग वगैरह इनडायरेक्टली हो रही थी, अभी भी हो रही है, तो अभी यही चल रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मुकेश अंबानी जी हैं या आदरणीय अनिल अंबानी जी हैं, आदरणीय विजय माल्या जी हैं, आदरणीय जो भी हैं अडानी जी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली फाइटिंग द इलेक्शन। वो लोग फंड करते हैं और फिर यूज़ मतलब अपनी पॉलिसी अपने फेवर में बनवाते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह के क्रिटिसिज्म में ये सब पड़ा होगा। सो नाउ दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन। तो अभी आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कॉर्पोरेटाइजेशन इज इक्वल टू क्रिमिनलाइजेशन, वो वाली सीसेट की रीजनिंग यहाँ मत करना, वो मतलब आता है, कठिन हो रहा है सीसेट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे भी वो चीज़ें करो। आप बस उसको समझ सकते हो कि जैसे वहाँ पे वो ट्रेंड धीरे धीरे एक डायरेक्शन में गया था, वैसे ही अभी कॉर्पोरेटाइजेशन इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है मतलब पॉलिटिक्स को। बट ये जो एग्जाम्पल है, जो मैं केरला का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है, दैट आगे 20-30 साल बाद क्या हो सकता है, दैट कॉर्पोरेट सीधा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मीन्स यू कैन इमेजिन आदरणीय मुकेश अंबानी जी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डायमेंशन, जस्ट एक एनोलॉजी बनाओ और समझने की कोशिश करो, सो यू कैन एनालाइज दिस थिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। कोई भी यहाँ पे जज्बाती नहीं होगा, मैं किसी का सपोर्ट और किसी के विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द परस्पेक्टिव दैट हाउ, जैसे क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड एनालिसिस था, ऐसे ही यहाँ पर भी एक नई बुक आप लिख सकते हो और उसमें ये चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपका नाम लिखेंगे कि एज पर XYZ उन्होंने अपनी बुक में ऐसे ऐसे का एक ट्रेंड एनालिसिस किया था। तो ये या तो आप कर दो या फिर 1-2 साल में मैं ये बुक अपनी निकाल के उसमें ये कर दूंगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस एग्जाम्पल। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक न्यूज़ आर्टिकल है कि इलेक्शन कमीशन ने ये पाया कि जो IPS थे वो खुद ही पैसे बांट रहे थे इलेक्शन में। अभी MP में आई थिंक ये न्यूज़ हुई है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये चीज़ भी बताई है कि इलेक्शन कमीशन ने या हाई कोर्ट ने, जो भी है, किसी ने भी, मीन्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट यस पैसे बांटते हैं, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। जस्ट इसको कोट कर सकते हो किसी भी आंसर वगैरह में कि रिसेंटली ये पाया गया कि IPS जो थे, IPS अधिकारी, वो ही चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसे बांट रहे थे अमिड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ओके। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल फॉर योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तो हमने द हिंदू पढ़ लिया, वहाँ 3 आर्टिकल थे, द इंडियन एक्सप्रेस में 2 आर्टिकल थे, जुडिशरी के 2 आर्टिकल हो गए और HDI का 1 आर्टिकल हो गया और 2 आर्टिकल छोटे छोटे हो गए। तो हमने ऐसे आज
5 आर्टिकल कवर किए। इनको पढ़िए, मज़े कीजिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए एंड हैप्पी लर्निंग। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।